کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ حقیقت میں کس طرح انفولڈ ہوگا؟ اور سوچیں کہ اگر ایسا ہوا تو ایران کس طرح ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ رد عمل کتنا سخت ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب امریکہ نے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو صرف 8 دنوں میں 8500 کلومیٹر دور کا فاصلہ طے کر کے پرشین گلف میں ڈپلوائے کر دیا ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹریگر دبانے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک آل آؤٹ وار میں ایران واقعی امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو کرپل کر سکتا ہے یا یہ محض ایک افسانہ ہے؟ یہ سب سوال کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ کیلکولیشن ہے جو اس وقت صرف کلوز ڈورز کے پیچھے وار شپس پر کمانڈ بنکرز میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں۔ اور اس ڈاکومنٹری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس بحران کو فل سکیل وار میں بدل سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب میں آپ کی آئندہ جنگ کو سمجھنے کی سوچ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بدل سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پینٹاگون تیار تھا، جیٹس اپنی جگہ لے چکے تھے، میزائل آرمڈ تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف اوور ویلمنگ ملٹری ایکشن کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایرانی ایئر سپیس کو بند کر دیا گیا تھا، مارکیٹ انسٹیبلٹی کا شکار ہو گئی اور دنیا نے پرشین گلف پر فوکس کر لیا۔ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ حملہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، اور پھر لانچ سے چند منٹ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حملہ روک دیا۔ ایک پرسکون پریس ریلیز آئی جس میں کہا گیا کہ حملہ اس لیے روکا گیا ہے کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پھانسیوں کو روک دیا گیا ہے۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ریجنل الائز نے تحمل کا مشورہ دیا اور پارٹنرز سے سٹیپ بیک کرنے کو کہا، لیکن حقیقت صرف یہی نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے کچھ اور بھی ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ جب ایران کو یقین ہو گیا کہ امریکی حملہ قریب ہے تو اس نے آل آؤٹ ریئیکٹ کیا۔ اس عمل میں شاید اس نے سب کچھ وہ ظاہر کر دیا جس کی امریکہ کو ضرورت تھی۔ ڈیفنسز کو ریپوزیشن کیا گیا، لیڈرشپ کو منتقل کیا گیا، ایمرجنسی بنکرز کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کمیونیکیشن لائنز کی ری روٹنگ کی گئی۔ ریسورسز کو موو کیا گیا اور کمانڈ سٹرکچر جو برسوں سے چھپی ہوئی تھی سرفیس پر آنا شروع ہوئی۔ ایران نے دکھا دیا کہ اس کی طاقت کا مرکز کہاں ہے اور اس کے رہنما کہاں چھپتے ہیں، اور کرائسس میں اس کی ملٹری مشین کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ جب ایران ریئیکٹیو فیز میں تھا تو یقینی طور پر موومنٹ دیکھی جا رہی تھی، ہر سگنل انٹرسیپٹ ہو رہا تھا اور ہر کنٹیجنسی میک کی جا رہی تھی۔ اس انتہائی ٹینس ماحول میں ایران ایک طرف تو جنگ کی تیاری کر رہا تھا، مگر دوسری طرف شاید ان انٹینشنلی خود کو ایکسپوز بھی کر رہا تھا۔ دنیا نے جسے امریکہ کا کینسلڈ اٹیک سمجھا، شاید وہ کچھ اور ہی تھا، ایک میسو انٹیلیجنس آپریشن۔ چند ہی دنوں میں امریکہ اور اسرائیل شاید ایران کے بارے میں وہ سب کچھ جان چکے تھے جو برسوں میں ممکن نہیں تھا۔ وہ ایران کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ابھی نہیں، کیونکہ ایران کے پاس ابھی بہت کچھ ایسے سرپرائز ہو سکتے تھے جو اسرائیل، امریکہ اور شاید کچھ نیبرنگ کنٹریز کے لیے خطرناک ثابت ہوں۔ انہیں مزید وقت چاہیے تھا، مزید انسائٹ، مزید پریپریشن، ایک بہتر پلان، اور کبھی کبھی سب سے طاقتور حملہ وہ ہوتا ہے جو کبھی لانچ ہی نہ کیا جائے۔ آئیے تفصیلات کو سمجھتے ہیں۔ جنوری 8، 2026 ساؤتھ چائنا سی کی ایک رات یو ایس ایس ابراہیم لنکن لائیو فائرنگ ایکسرسائزز میں مصروف تھا۔ پھر اچانک سیکیور لائن روشن ہوتی ہے، فوری طور پر بیک اپ اینڈ موو کا آرڈر ملا۔ پرشین گلف کی طرف سپرنٹ کرو، اگلے ہفتے نہیں مگر ابھی۔ مگر یہ جلدی کیوں؟ امریکہ کی نیوی کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، مگر نقشہ دیکھتے ہی پینٹاگون کو اس کا احساس ہوا کہ اس کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک بحری بیڑا یو ایس ایس جارج واشنگٹن یوکوساکا جاپان میں ہے، تقریباً 5000 کلومیٹر نارتھ میں، ٹائملی ریئیکشن کے لیے بہت دور۔ دوسرا بحری بیڑا یو ایس ایس روزویلٹ ابھی مینٹیننس مکمل کر کے نکلا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا وارشپ یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ ہے، جس نے اس وقت وینزویلا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پینٹاگون کا ایک ہی مقصد تھا، ایسا کیریئر جو ڈے 1 ایئر ڈومیننٹ سٹرائک کے لیے فوری تیار ہو اور ایران کی لیئر ڈیفنسز کو بریچ کر سکے۔ وہ جہاز ابراہیم لنکن تھا اور اس کا ایئر ونگ خصوصاً F-35C اسٹیلتھ فائٹر جہاز ہی اصل وجہ تھے، اوور ویلمنگ پرسیژن اور اسٹیلتھ پر انحصار۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے لنکنز ان کا شیل ناٹ پیرش کا موٹو محض الفاظ نہیں بلکہ امریکیوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ 2020 کی ایک ڈپلائمنٹ میں اس نے بغیر وقفے کے 295 کنزیکٹیو دن سمندر پر آپریٹ کیا۔ اس طرح کی صلاحیت کا دوسرے ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ چین کے کیریئر کو زیادہ سے زیادہ 90 دن کے بعد ریفیولنگ اور ری سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
रूस का कुज़नेटसोव 3 साल से बंदरगाह से बाहर नहीं निकला, पियर पर आग लगी और अब तक अंडर रिपेयर है। इंग्लैंड का क्वीन एलिजाबेथ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की डिप्लॉयमेंट कर सकता है। इन 295 दिनों के पीछे एक मुकम्मल रीबिल्ड है, 4 साला मल्टी बिलियन डॉलर की रिफ्यूलिंग और ओवरऑलिंग, जिसमें 1989 के बने हुए वॉरशिप को जदीद स्ट्रेटेजिक पावर हाउस में तब्दील कर दिया। 2 A4W न्यूक्लियर रिएक्टर की ताकत के साथ लिंकन्स ने बगैर रिफ्यूलिंग के 8 दिन में पर्शियन गल्फ तक का सफर 8,400 किलोमीटर का फासला तय किया, मगर उसकी असल कुवत फ्लाइट डेक पर मौजूद वॉर मशीन्स हैं। कैरियर का एयरविंग 9 तकरीबन ऑपरेशनल रेडी 75 जहाज, इसके अलावा ब्लैक नाइट्स और F-35C लाइटनिंग 2 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जो रेडार से बचते हुए ईरान की सख्त डिफेंसेस पर स्ट्राइक करने का प्लान के साथ डिप्लॉय किए गए हैं। इनके पीछे F-A-18 सुपर हॉर्नेट और भारी ऑर्डिनेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन VAQ-133 यानी विजर्ड्स E-18G ग्राउलर के साथ ऑपरेट करता है, जिस पर ALQ-249 जनरेशन जैमर लगे हुए हैं। ये महज नॉइज जैमिंग नहीं बल्कि डिजिटली डायरेक्टेड एनर्जी अटैक है। जैसे ही रेडार डिग्रेड होता है, सुपर हॉर्नेट पर मौजूद 3 स्क्वाड्रन के 36 जेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल साइट्स और नेवल बेसेस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सब कुछ 500 किलोमीटर दूर से E-2D एडवांस हॉकाई के जरिए कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि ये है फ्लीट का एयरबोर्न ब्रेन। इसका AN/APY-9 रेडार 450 किलोमीटर से दूर टारगेट ट्रैक करता है और पूरे एयरविंग को कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ 1000 कॉन्टैक्ट्स मैनेज करता है एक ही प्लेटफॉर्म से। और कैरियर अकेला नहीं बल्कि 3 डिस्ट्रॉयर्स इसकी शील्ड करते हैं। टॉमाहॉक जो तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर तक ईरान के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं। SM-3 इंटरसेप्टर्स जो स्पेस में बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये मिसाइल्स आने वाले मिसाइल्स और फास्ट अटैक बोट सबको एंगेज कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका जनवरी 18, 2026 दुनिया के सबसे ज्यादा मॉनिटर किए जाने वाले सी रूट्स में से एक। USS लिंकन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दाखिल होता है, इंतहाई डिम लाइट्स इस्तेमाल करते हुए और एमिशंस भी कम से कम, मगर 97,000 टन स्टील को मलाका के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तकरीबन 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ छुपाया नहीं जा सकता। फिर एक और अरविंद नामी बहरी जहाज नमूदार होता है, एक ईरानी कार्गो वेसल जिसका रूट है शंघाई से बंदर अब्बास। इब्राहिम लिंकन कैरियर से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर कैरियर की रफ्तार के साथ स्पीड मैच करता हुआ कैरियर के ब्रिज पर मौजूद हर शख्स समझ जाता है ये महज इत्तफाक नहीं है। ये ऑब्जर्व कर रहा है, डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, कैरियर की तस्वीरें ले रहा है, फाइटर जहाज़ों की तादाद और कैरियर की स्पीड नोट कर रहा है। और बहुत जल्द ये इंटेलिजेंस तेहरान पहुंच जाएगी। ईरान को एयरविंग और एस्कॉर्ट शिप स्ट्रेंथ और अराइवल टाइमलाइन पता चल जाएगा। इस पर पेंटागन और एयरक्राफ्ट कैरियर का रिएक्शन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये गलती नहीं थी, ये एक इंटेंशनल मूव थी। ईरान को ये सब कुछ दिखाना था, अमेरिका की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस का एक पैगाम। F-35C लाइटनिंग की मौजूदगी सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो ISR प्लेटफॉर्म था, यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। अमेरिका समझता है कि इसी लम्हे के लिए इस बहरी बेड़े को 4 साल और $3 बिलियन की लागत से रीबिल्ड किया गया था। इस दुनिया के ग्लोब के बिल्कुल दरमियान में पानी पर तैरते 4.5 एकड़ की टेरिटरी में, जिस पर 5,000 अमरीकी पहरा दे रहे थे। दूसरी तरफ तारीख की रोशनी में ईरान को ये यकीन है कि सिर्फ नंबर्स जंग का फैसला नहीं करते, मगर असल सवाल ये है कि पेंटागन क्या कर सकता है। असल सवाल ये है कि वो हासिल क्या करना चाहता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा एक्शन से पहले बनती है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव अब भी एम्बिगुअस है। क्या ये रिजीम चेंज है, एक नई न्यूक्लियर डील या बैलिस्टिक मिसाइल्स की तबाही? क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की जंग का तकाजा करता है। अमेरिकी हमले की टाइमिंग्स सबसे ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर होंगे। बहुत देर से हमला हुआ तो मोमेंटम हाथ से निकल जाएगा और हाफ मेयर्स अमेरिकी अवाम को दिखाने के काबिल कोई मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। यही वो हिंज है जिस पर यह सारा बैलेंस मेंटेन होगा। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में फैसलों का असर फैसला करने वाले लीडर्स की पूरी उम्र के सालों से कहीं ज़्यादा सालों तक रहेगा। तो फिर ईरान हकीकत में करेगा क्या? ईरान के पास ऑप्शंस की बात करते हैं। ईरान ने पिछले चंद महीनों में हाथ पर हाथ रखकर वक्त ज़ाया नहीं किया।
रशियन और चाइनीज कार्गो एयरक्राफ्ट मुसलसल ईरान के चक्कर लगाते रहे हैं, जिनके बारे में तकरीबन ये बात यकीनी है कि वो आर्म्स और एमुनिशन लेकर आ रहे थे। मिड 2025 के बाद तेहरान खास तौर पर चाइनीज वेपन का जखीरा जमा कर रहा था। कागजों पर देखा जाए तो ईरान के पास अब जदीद एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिनमें HQ-9B मिसाइल भी शामिल है, लेकिन अमली हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। एयर डिफेंस सिर्फ उसी वक्त मौसर होता है जब वो लेयर्ड हो और दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड हो। ईरान के पास बज़ाहिर ये मुकम्मल इंटीग्रेशन अभी मौजूद नहीं है। पेंटागन सिर्फ सही लम्हे का इंतजार कर रहा है, मगर दूसरी तरफ ये बात भी तय है कि जब भी हमला हुआ तो ईरानी कौम एक झंडे के गिर्द मुत्तहिद हो जाएगी, चाहे वक्ती तौर पर सही। अगर अमेरिका एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की दहलीज पर ले जाता है तो तेहरान का रद्द अमल रिवायती फोर्स ऑन फोर्स जंग की सूरत में नहीं होगा। इसकी बजाय ईरान एसिमेट्रिक टैक्टिक्स पर इन्हिसार करेगा, जिनका मकसद अमेरिका को बराह रास्त शिकस्त देना है, बल्कि स्ट्राइक की कीमत को नाकाबिले बर्दाश्त बनाना है। आइए बात करते हैं ईरान के ऑप्शंस की। टैक्टिक 1, ईरान की हिकमत अमली सैचुरेशन पर मबनी है। उसकी सबसे बड़ी वायबल टैक्टिक स्वाम है। ईरान ने एसिमेट्रिक और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की सबसे ज्यादा मशकें की हैं, जिसमें सैकड़ों मिसाइल्स, दर्जनों फास्ट बोट्स और शेयर वॉल्यूम के जरिए दिफा को ओवरवेल्म किया जा सकता है। एक कोस्टल बैटरी बैक वक्त 50 मिसाइल फायर कर सकती है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी के पास सैकड़ों छोटी तेज रफ्तार फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, जो मशीन गन्स, रॉकेट्स और एंटी शिप मिसाइल से लेस हैं। लॉजिक सादा है, ईरान एक US डिस्ट्रॉयर से 1-on-1 नहीं लड़ सकता, इसलिए वो ये कोशिश भी नहीं करता। इसकी बजाय मुख्तलिफ डायरेक्शन से दर्जनों गन बोट्स एक साथ बढ़ती हैं, समंदर को केओस में तब्दील कर देती हैं। मिशन प्रिसीजन नहीं, सैचुरेशन है, और मकसद ये है कि डिफेंस सिस्टम को इतने ज्यादा टारगेट्स दिखाओ कि उनका डिफेंस सिस्टम किसी भी वक्त सबको तबाह ना कर सके। और एक स्वाम को पूरे फ्लीट को डबोना नहीं होता, सिर्फ एक हिट काफी होती है और हेडलाइंस फौरी तौर पर बदल जाती है। टैक्टिक 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को माइन करना। ये होगा एक साइलेंट किलर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा है, मगर जमीन का सबसे अहम ऑयल चोकिंग पॉइंट है। रोजाना तकरीबन 21 मिलियन बैरल ऑयल यानी आलमी कंजम्पशन का तकरीबन 20% यहाँ से गुजरता है। ईरान के पास हजारों माइंस मौजूद हैं, जिनमें स्मार्ट माइंस भी शामिल है, जो मखसूस शिप्स के लिए ओकेस्टिक सिग्नेचर पहचानती हैं। जंग की सूरत ये माइंस सबमरीन्स, छोटी कश्तियों या हत्ता के डिस्क्वीज सिविलियन वेसल्स के जरिए भी बिछाई जा सकती हैं। मकसद सिर्फ फौजी नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। माइंड हॉर्मुज़ सिर्फ US नेवी को खतरे में नहीं डालता, बल्कि ये रातों रात तेल की कीमतों को स्पाइक दे देगा। टैक्टिक 3, तीसरा टैक्टिक खुद एक ज्योग्राफी है। ईरान की कोस्टलाइन रगेड और माउंटेनियस है। मोबाइल मिसाइल बैटरीज के लिए बेहतरीन ट्रक माउंटेड लॉन्चर कवर फायर करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, यानी शूट, मूव एंड हाइड। लेकिन यहाँ तेहरान के लिए डिलेमा सामने आएगा। हॉर्मुज़ बंद करने के लिए ईरान को अपनी सबसे कीमती एसेट्स जाहिर करने पड़ेंगे। जैसे ही मिसाइल इंगेज करते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, और जैसे ही वो विजिबल होंगे लिंकन एयर विंग उन्हें टारगेट कर सकता है। चंद दिन के लिए स्ट्रेट बंद करने की कीमत ईरान के कोस्टल डिफेंस नेटवर्क्स की संगीन तबाही हो सकती है। लिंकन सिर्फ जंग शुरू करने नहीं आया, उसका मकसद ये साबित करना भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके जंग नहीं जीती जा सकती। टैक्टिक 4, ईरान की तरफ से चौथा खतरा समंदर की सतह से नीचे से आता है। पर्शियन गल्फ कम गहरा है, ये बड़े अमरीकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए सूटेबल बैटल ग्राउंड नहीं है, लेकिन ईरान की डीजल इलेक्ट्रिक मिनी सबमरीन्स के लिए इंतहाई सूटेबल है। हैवीवेट टॉर्पीडो से लेस माइंस बिछाने की सलाहियत रखने वाली ये आबदोज़ें खामोशी से स्ट्राइक करती हैं। एक कामयाब टॉर्पीडो हिट से कैरियर को डबोया तो नहीं जा सकता, लेकिन एक हिट और अमेरिका का सबसे बड़ा मोबिलिटी एडवांटेज खत्म हो जाता है। ये एक लेयर ट्रैप है, नीचे माइंस, ऊपर मिसाइल्स और दरमियान में मनूवर करने की कोई गुंजाइश नहीं। टैक्टिक 5, पांचवा हथियार ड्रोन्स। ईरान बरसों से मिडल ईस्ट में एक ड्रोन पावर बनने पर काम करता आया है। जंग में UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिर्फ स्काउट नहीं होते, वो खुद वेपन्स बन जाते हैं। लॉटरिंग, सुइसाइड ड्रोन्स, मिनिशंस। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, उन्हें मैसिव वेव्स में लॉन्च करो। मकसद जहाज डबोना लाजमी नहीं, बल्कि उन्हें ब्लाइंड करना है। असल हदफ पैरालिसिस क्रिएट करना है। कैरियर एविएशन को इतनी देर इनफेक्टिव करना है कि मिशन सैल्वोज अपना काम कर सकें। एक स्वार्म ड्रोन से जंग नहीं जीती जा सकती, मगर वो उस स्ट्राइक का दरवाजा खोल देती है जो फैसला कुन साबित होती है। और फिर सामने आती है सबसे खतरनाक हकीकत, US नेवी अकेले जंग नहीं लड़ती। पोर्ट्स, एयरफील्ड, फ्यूल डिप्स और कमांड हब्स डिपेंडेंट होती है। अमेरिका के मफाद में ऐसी बहुत सारी जगहें तकरीबन 19 एयरबेस की शक्ल में गल्फ में पहले ही मौजूद है। ईरान के पास मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा मौजूद है। उसकी हिकमत अमली सिर्फ शिप्स को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरालाइज करना है जो उनके शिप्स को ऑपरेशनल रखते हैं।
बड़े पैमाने पर इन हमलों का फोकस मिसाइल साइट्स, स्टैटिक और हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल उदीद एयर बेस कतर और इराक और कुवैत में खुद अमरीकी बेसिस। मकसद डिनाइल, न फ्यूल, न रीसप्लाई, न सेफ हार्बर। अगर फ्लीट के पास डॉक करने की जगह ना हो तो उसे गल्फ में रहना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ अल उदीद में हजारों अमरीकी फौजी तैनात हैं और यही यूएस सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है। ईरान फतेह 110 जैसे मिसाइल या उससे भी लॉन्ग रेंज सिस्टम्स के जरिए चंद मिनटों में इस रीजन को निशाना बना सकता है। बहरीन इससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। ये मिडिल ईस्ट में वाहिद परमानेंट यूएस नेवल शोर बेस है। इसके साथ ईरान की हिमायत में प्रॉक्सी फोर्सेस यमन से लेकर ईरान की मलेशिया तक सेकेंडरी फ्रंट्स खोल सकते हैं, जिससे अमरीकी डिफेंसेस एक साथ कई डोमेन में फैल जाएगी। ईरान की मिसाइल फोर्सेस खुले मैदानों में डिप्लॉयड नहीं है, वो हार्डन्ड अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्सेस में डिस्पर्स्ड है और मोबाइल लॉन्चर्स पर मुश्तमिल है और एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से बचने के लिए डिजाइन की गई है। इससे सडन और रैपिड सरप्राइज अटैक की फीजिबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्चर ऑन मूव रहते हैं, टनल्स उन्हें कंसील करती हैं, जिसके बाद अक्सर पहली वार्निंग वो मिसाइल होता है जो पहले ही लॉन्च हो चुका होता है। ईरान की हिकमत अमली अमेरिका को सिस्टमैटिकली शिकस्त देना नहीं है, बल्कि ओवरवेल्म करना है, डिसरप्ट करना है और स्ट्राइक की कीमत को इस हद तक बढ़ाना है कि फैसले मैदान जंग में नहीं बल्कि सियासी मेज पर हों। अगर मिडल ईस्ट में मगरबी मदाखलतों का रिकॉर्ड देखा जाए तो नताइज कभी भी पॉजिटिव नहीं रहे। लीबिया, सीरिया और इराक तकरीबन हर वेस्टर्न इंटरवेंशन के बाद इंतशार, खुरेजी, बदनबनी और शदीद इंस्टेबिलिटी ने जन्म लिया। यही वजह है कि वाशिंगटन इस बार किसी तवील और गैर यकीनी जंग की बजाय एक ओपन एंड शट केस चाहता है। लेकिन अगर मकासद स्ट्रेटेजिक नेचर के हों, जैसे रजीम क्लैप्स या ईरान को दहाइयों से कायम अपनी बुनियादी मुतालबात गिव अप करने पर मजबूर करना, तो अमेरिका को इस खित्ते में डिप्लॉयड मौजूदा मिलिट्री हार्डवेयर से कहीं ज्यादा ताकत दरकार होगी। और फिर इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, यानी गल्फ कंट्रीज की सबसे बड़ी तशवीश वो बड़े पैमाने की डिस्टेबलाइजेशन है जो ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के नतीजे में इस खित्ते में पैदा होगी। खास तौर पर उस सूरत में जब ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक की एक लहर शुरू करेगा जो इजराइल की बजाय या कलेक्टिवली गल्फ स्टेट्स के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की सूरत में करे। दूसरी तरफ ये तासुर भी मजबूत होता जा रहा है कि अमेरिका अब खुद इस बात पर यकीन नहीं रखता कि वो एक वाज़े और फैसला कुन मिलिट्री विक्ट्री हासिल करके अपने लोगों को एक वॉर ट्रॉफी दिखाने की पोजीशन में है। अमेरिकी फैसला साज शायद ऑपरेशन ईगल क्लॉ को भी याद कर रहे हों। ये थी 24 और 25 अप्रैल 1980 में सदर जिमी कार्टर के दौर में ईरानी कब्जे में लिए गए डिप्लोमेट्स को बचाने की नाकाम कोशिश, जो मुकम्मल तबाही पर खत्म हुई। और कहा जाता है कि सदर कार्टर के उसी साल इलेक्शन हारने की वजह यही थी। जंग शुरू करना आसान होता है, मगर उसके नताइज की पेशन गोई करना तकरीबन नामुमकिन। सदर ट्रंप अपनी फौज और लोगों की तवक्कुआत को पहाड़ की चोटी तक ले आए हैं और अब उन्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा या फेस लूज करने का खतरा मोल लेना होगा। और बदलते हालात और चीन और रूस फैक्टर की वजह से शायद खुद उन्हें भी वाज़े नहीं कि इस जंग का एंड स्टेट क्या होगा। लेकिन हिकमत अमली, हथियारों और वॉर गेम से आगे एक और सच भी है। हर लॉन्च किया गया मिसाइल महज एक हेडलाइन नहीं होता, वो तेहरान में लरसता हुआ एक घर होता है, अंधेरे में पहरा देने वाला एक सेलर होता है और इस खित्ते में एक ऐसा खानदान होता है जो ये सोच रहा होता है कि आया कल की रात खामोशी में गुजरेगी या सायरन की आवाज़ों में एक बंकर में। क्योंकि जंग कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और कमांड सेंटर्स तक महदूद नहीं रहती, वो मार्केट प्लेस, शहरों और उन आम लोगों तक जा पहुंचती है जिन्होंने कभी भी इस खौफनाक तारीख का हिस्सा बनने का इंतखाब ही नहीं किया होता। इब्राहिम लिंकन ताकत की अलामत बनकर समंदर में गश्त तो कर रहा है, मगर ईरान भी अपने सर्वाइवल के लिए तैयारी कर चुका है। इन दोनों के दरमियान एक तंग स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, मगर दुनिया सांस रोक के बैठी आउटकम का इंतजार कर रही है। एक मामूली सी मिस कैलकुलेशन ऐसी जंग को जन्म दे सकती है जो मिडल ईस्ट से कहीं आगे फैल सकती है। सवाल अब ये नहीं कि जंग हो सकती है या नहीं, बल्कि ये है कि इससे पहले कि फर्स्ट स्ट्राइक की जाए कोई इसे रोक सकता है। शायद रियल होप ये नहीं कि पहले हमला कौन करेगा, बल्कि रियल होप अब ये है कि इन दोनों में से कोई भी हमला ना करे। क्योंकि एक बार पहली गोली चल गई तो रिवाइंड नहीं होती, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पाकिस्तान, पाइंदाबाद।